Okay, so but you can see over here that we already discussed about some instruments of chemistry, if you remember. तो हमने conical flask के बारे में बात की, हमने हमने beakers के बारे में बात की, हमने burette, pipette और cylinder के बारे में बात की. Now in today's class we were moving towards separation techniques, right? So let's start the topic with how can we identify the purity of a substance using melting point and boiling point, right? This is one of the question which is very important and very basic. एक छोटा सा point है, but ये MCQs में बहुत important हो सकता है, ये reasons में बहुत important हो सकता है. So you need to talk about this कि यार ये क्या चीज है, ठीक है ना? So let's see about this thing. Remember this one, that whenever we talk about any substance which is pure, right? Whenever we talk about the purity of any substance, बच्चों, so remember the pure substances melt at sharp temperature. ठीक है, बॉयल भी होंगे sharp temperature पे और melt भी होंगे sharp temperature पे. That means for example if you talk about water, अगर आप पानी की बात करते हो, so पानी होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल, right? So the boiling of water is going to be start at 100 degree centigrade, and if the water is going to be completely boiled at exact 100 degree centigrade, that means it is pure, right? So you need to remember this. If any liquid start boiling at any specific temperature and completely boil at that temperature without any temperature range, that is means कि यार वो आपके पास क्या है, वो जो आपके पास लिक्विड है वो प्योर है. फॉर एग्जांपल आप NaCl की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट NaCl बच्चों, तो NaCl जो है आपके पास, NaCl एक सॉलिड है, ठीक है ना? उसका फॉर सपोज मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड. सो आपने उसको हीट करना शुरू किया, आपने उसको हीट करते करते टेम्परेचर 801 तक पहुंचा दिया, देन यू विल फील इट स्टार्ट मेल्टिंग. तो जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, फिर टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ठीक है ना? टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है. ड्यूरिंग द मेल्टिंग द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, because all the temperature, all the heat what you are going to provide that substance is actually using in the melting or in the change of state that time, right? तो आप उस वक्त जो हीट दे रहे हो उसमें टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि जितनी भी एनर्जी आप दे रहे हो, जो भी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो जो हीट यूज हो रही है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है. दैट इज व्हाई टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट. तो बच्चों अगर कंप्लीटली पूरा का पूरा NaCl मेल्ट होना स्टार्ट हो 801 पर, और 801 पर ही पूरा का पूरा मेल्ट हो जाए, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज ना हो जब तक वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, दैट मींस NaCl आपके पास प्योर है. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl मेल्ट होना शुरू हुआ 801 पर, और जब तक वो कंप्लीट मेल्ट हुआ टेम्परेचर 807 हो गया, फॉर सपोज 801 से मेल्ट होना शुरू हुआ और 807 तक कंप्लीटली मेल्ट हुआ, तो यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर रेंज आ गई, ठीक है ना? ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर रेंज आ गई, टेम्परेचर जो है आपके पास थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू शो यू कि यार आपके पास जो सब्सटेंस था वो इम्प्योर था, ठीक है ना? So remember, if you talk about the pure substances, the very basic thing to identify them is their melting point and boiling point. Pure substances का melting boiling point sharp होता है. You can write pure substances melt and boil at sharp temperature, right? They always melt and boil at sharp temperature. For example, if any solid is impure, for example, if any solid is impure, तो आपको याद रखना है कि जो solid अगर impure होगा, अगर कोई solid impure होगा तो उसका melting point कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपने याद रखना है impurities जो होती हैं, impurities decrease the melting point. Impurities क्या करती हैं? Impurities decrease the melting point of solids, right? ये आपने याद रखना है. Impurities अगर होंगी किसी solid में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 810 डिग्री सेंटीग्रेड द फिक्स टेम्परेचर है जो कि मेल्टिंग पॉइंट है NaCl का, फॉर एग्जांपल 810,
और अगर उसमें इम्प्योरिटीज हैं तो 810 से पहले मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिमेंबर इम्प्योरिटीज डिक्रीजेस या डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि अगर कोई लिक्विड इम्प्योर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इम्प्योरिटीज आपके पास अगर किसी लिक्विड में होंगी, इम्प्योरिटीज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये आपने डिफरेंस याद रखना है बस, ठीक है ना। ये पहली चीज है जिससे आपको आइडिया लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस आपके पास प्योर है या नहीं। अगर आपके पास मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, दैट मींस जहां मेल्टिंग शुरू हुई है वहीं मेल्टिंग खत्म हो गई पूरी की पूरी, और टेम्परेचर जरा से भी नहीं हिला, दैट मींस वो सब्सटेंस आपके पास प्योर था, ठीक है। अगर उसकी रेंज है, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हुआ 801 से 807 तक मेल्ट होता रहा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग मेल्टिंग या ड्यूरिंग बॉइलिंग, दैट मींस वो सब्सटेंस इम्प्योर है। और आपने याद रखना है कि अगर कोई सॉलिड इम्प्योर होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उसके एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट से कम हो जाता है, और अगर कोई लिक्विड इम्प्योर होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट उसके बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर पानी इम्प्योर होगा तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल नहीं होगा, बल्कि वो 100 से ऊपर बॉइल होगा, मे बी 104 पे हो, 105 पे हो, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा इम्प्योरिटीज की वजह से, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? जी चले अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप जो है आइडेंटिफाई कर सकें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से, देन वी हैव वन मोर टेक्निक टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज प्योर और नॉट, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक यू कैन से दैट टेक्निक है जो कि प्योरिटी चेक करने के लिए यूज की जाती है। सो यू कैन से दैट क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द टेक्निक which can be used to check the purity of the substance. Technique, this is one of the technique, right, used to check purity of substance, right? This is one of the use of chromatography. सिर्फ ये एक यूज है, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं आपके पास। आपको पता चल सकता है कि इसके अंदर कितने आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं किसी भी सब्सटेंस में, ये मिक्सचर है या ये कंपाउंड है, ये भी आपको पता चल सकता है। और बहुत सारी चीजें हमें जो है क्रोमेटोग्राफी से पता चल सकती हैं, बट वेरी बेसिक यूज है, ये आपको बताएगा कि ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ये कि आपको ये भी बता सकता है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, आप वो कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, आप उस कंपोनेंट्स को चेक भी कर सकते हो कितने हैं वो। उसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो दे आर हैजर्डस और नॉट। तो बहुत सारी चीजें आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज में बहुत कंसिस्टेंटली ये टेक्निक यूज की जाती है, और इसकी बहुत ज्यादा एडवांस जो आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं वो भी आ गई हैं, लाइक HPLC, GLC, DSC, बहुत सारी इसकी टेक्निक्स हैं जो कि अब एडवांस लेवल पे यूज होती हैं इंडस्ट्रीज में। बट राइट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट क्रोमेटोग्राफी, और ये जो क्रोमेटोग्राफी की बात हम कर रहे थे, जो हम कर रहे हैं, ये आपके पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी। दिस इज एक्चुअली पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये भी यूज होती है इंडस्ट्रीज में, बट इसका इतना ज्यादा यूज नहीं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत आपके पास मैनुअल चीजें हैं, तो मैनुअल चीजों में तो बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। तो अब ये यहाँ से निकल कर बात बहुत आगे तक चली गई है, बट राइट नाउ यू नीड टू स्टार्ट विद दिस। अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आप आगे जाके ए लेवल्स में इसकी बात की चीजें समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू एनालाइज समथिंग इन द लैब, right? So you use the word analytical chemistry, and many of the things are designed in labs, and then they are going to be applied in industries and the rest of the things. So analytical chemistry is a very basic, जहाँ पर आप सारी चीजें जो है चेक करते हैं पहले लेबोरेटरी बेसिस के ऊपर, उसके बाद जाकर आप उसको अप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज में या लार्ज स्केल पर, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी, दिस इज एक्चुअली एनालिटिकल टेक्निक, जिसमें आप बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हो लैब में रहते हुए, ठीक है ना। नाउ apparatus, if you talk about the apparatus of chromatography, so you need to see this. आपके पास यहाँ पर देखा कंटेनर, any container, right? And this is the closed container. You can see this. This is the closed container. This is what? This is solvent. You can see that. This is solvent. This is the spot, right? This is spot means spot ये उस चीज का
किसका स्पॉट है? द सब्सटेंस विच यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, ये उस चीज का स्पॉट है। एंड दिस लाइन इज नोन एज बेस लाइन। यू कैन कॉल दिस लाइन एज बेस लाइन और यू कैन कॉल दिस एज बॉटम लाइन, राइट? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज अ क्रोमेटोग्राफी पेपर, राइट? दिस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर, राइट? तो ये सारी चीजें हैं आपके पास apparatus में। यू हैव अ कंटेनर, एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने जो है इस प्रोसेस को करना है, ठीक है ना? एंड कंटेनर शुड बी क्लोज, क्योंकि आपके पास जो सॉल्वेंट होगा उसके वेपर्स जब इस पूरे बीकर में या इस पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएंगे तो वहां से बाहर ना जाए, ताकि एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए, ठीक है ना? उसके बाद आपके पास एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो क्रोमेटोग्राफी है आपके पास वो इस पेपर पर ही होगी, इसके अलावा किसी पेपर पर नहीं हो सकती। हम लैब में, स्कूल लैब में जो है क्रोमेटोग्राफी पेपर के अलावा हम जो है फिल्टर पेपर भी यूज कर लेते हैं, बट क्रोमेटोग्राफी पेपर एक बिल्कुल अलग सेपरेट पेपर होता है। इसके जो पोर साइज होता है ये बड़ा बेहतरीन होता है, जो कि सॉल्वेंट को ऊपर राइज करने में मदद करता है, ठीक है ना? अगर आप कॉपी से पेज फाड़कर इसमें हैंग कर देंगे तो डेफिनेटली आपके जो कॉपी का पेज होता है उस पे जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो क्लोज्ड होते हैं। तो जो क्लोज्ड पोर होते हैं उसके ऊपर सॉल्वेंट राइज नहीं करता। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है ये खास तौर पर डिजाइन किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो सॉल्वेंट आपने जिन सॉल्वेंट में इसको हैंग किया है वो सॉल्वेंट इसके ऊपर राइज करे, ठीक है ना? इस क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर आप एक बेस लाइन ड्रॉ करते हो और ये बेस लाइन आप जो ड्रॉ करते हो ये ड्रॉ करते हो आप पेंसिल से, ठीक है ना? बेस लाइन ड्रॉ करते हो और उस बेस लाइन पे आप स्पॉट लगाते हो और जो स्पॉट आप लगाते हो वो स्पॉट होता है आपके पास सब्सटेंस टू बी आइडेंटिफाई। जो सब्सटेंस आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो उसको आप स्पॉट लगाते हो, ठीक है ना? उसके अलावा आपके पास जो सॉल्वेंट होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। सॉल्वेंट आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जो आपका स्पॉट हो वो सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है ना? सब्सटेंस शुड बी सॉल्युबल। जो सब्सटेंस आप आइडेंटिफाई कर रहे हो वो सॉल्युबल होना चाहिए। सो आई कैन राइट ओवर हियर स्पॉट should be soluble in the respective solvent. So ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए क्रोमेटोग्राफी करते वक्त, आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। These are very important things. अगर इसमें से कोई एक सर चीज आपके पास गायब होगी तो आपका प्रोसेस जो है खराब हो सकता है। जी बेटे। सर बेस लाइन और सॉल्वेंट एक बार दोबारा समझा देते हैं क्या होते हैं? बेस लाइन क्या? सर बेस लाइन और सॉल्वेंट क्या होते हैं? बेस लाइन और सॉल्वेंट। जी बिल्कुल, अभी अभी हम एक प्रोसेस पूरा कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। हम इसकी वर्किंग में बात करते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है ना? अगर आप वर्किंग में बात करते हैं तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया। दिस इज अ क्रोमेटोग्राफी पेपर जो कि आपने यहाँ इसको रिसीव किया, ठीक है ना? दिस इज अ क्रोमेटोग्राफी पेपर। आप इस क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर क्या करते हो? एक बेस लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है ना? एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ बेस लाइन ऑन क्रोमेटोग्राफी पेपर। ड्रॉ अ बेस लाइन on a chromatography paper. आप क्रोमेटोग्राफी पेपर पे क्या ड्रॉ करते हो? बेस लाइन ड्रॉ करते हो विद पेंसिल, राइट? यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू नीड टू ड्रॉ इट विद पेंसिल। आपने इसको पेंसिल से ड्रॉ करना है। अब ये हम क्यों करते हैं? ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम इसके ऊपर एक एक हम समझ लें एक एक सेटअप डेवलप कर रहे हैं, हम एक सैंपल डेवलप कर रहे हैं, हम एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं, ठीक है ना? हम एक स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जहां से हम जो है मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से हम जो है स्पॉट को लगा सकते हैं, हम जहां से चेक कर सकते हैं कि यार स्पॉट यहाँ से स्टार्ट करेगा। हम एक स्टैंडर्ड एक लाइन सेट कर रहे हैं कि यार हमें जो भी कैलकुलेशन करनी होगी हमें इस लाइन से कैलकुलेशन सेट करनी होगी, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप विदाउट लाइन के ऐसे डिप कर देंगे स्पॉट को तो इट कैन बी लाइक एरर फॉर यू एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन। तो आपके लिए कुछ एरर्स आ सकते हैं, आप कैलकुलेशन में थोड़े से जो है पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकते हो। तो इसलिए हमने एक बेस लाइन से ड्रॉ करते हैं ताकि हम उसके ऊपर स्पॉट लगाएं और हमारे लिए जो है कैलकुलेशन ईजी हो जाए, हम एरर से जितना ज्यादा बचना चाहें हम बच सकते हैं, ठीक है? सर यहाँ पर ठीक है, बेस लाइन बनाने के लिए पेंसिल को क्यों यूज कर रहे हैं? बेस लाइन बनाने के लिए पेंसिल हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, पेंसिल हम इसलिए यूज करते हैं बेटे बेस लाइन बनाने के लिए क्योंकि वी आर डूइंग क्रोमेटोग्राफी, राइट? एंड इन द क्रोमेटोग्राफी वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द dyes, we are going to identify the pigments, we are going to identify the paints, and these are the substances that have multiple components in them, right? And if you talk about pen,
अगर आप पेन से ड्रॉ कर देते हो इसको, तो वी नो दैट पेन itself having ink, right? And if you talk about ink, so ink itself a type of dye. So अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक डाई को जो है चेक कर रहे हो और आपने उसके अंदर ऊपर से पेन से ही जो है लाइन खींच दी, तो वो जो स्पॉट आपने लगाया होगा, इट इज गोइंग टू डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड देन इट इज गोइंग टू बी सेपरेटेड ऑन द पेपर. और आपने लाइन भी पेन से खींच दी, तो पेन इटसेल्फ अ डाई, it is also going to be maybe possible one of the component or two of the component and maybe all of the components of that pen ink dye can be soluble in the solvent, and they can also be separated on the chromatography paper. If they are also going to be separated on the paper, that means they are going to ruin your exact result. आपको स्पॉट आइडेंटिफाई करना था, पेन की इंक भी सेपरेट हो गई, तो आप कैसे एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें करना किसका था, हो किसका क्या, है ना? दैट इज व्हाई पेंसिल we need to use pencil graphite से होती है, बनी हुई होती है, तो that is not going to be separate over there with the solvent, right बच्चों? Yes, sir. Okay, then mark a spot. This is the one thing. Then you need to mark a spot on the baseline. आपने baseline पे spot क्या करना है, mark करना है, ठीक है? और ये spot किस चीज का होगा? This spot should be of the substance to be identified. जिस सब्सटेंस की आप चेकिंग करने जा रहे हैं, उस सब्सटेंस को आपने जो है मार्क करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आप ब्लैक इंक को आइडेंटिफाई कर लें, तो आपने ब्लैक इंक को अगर आइडेंटिफाई करना होगा, सो यू नीड टू पुट अ स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक ऑन द बेस लाइन, ठीक है ना? बेस लाइन पे आप क्या कर देंगे, एक स्पॉट ब्लैक इंक का क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है ना? देन यू नीड टू डेप दिस फिल्टर पेपर जो आपने बनाया ना, बेस लाइन आपने जिस पे ड्रॉ किया है, जिस पे आपने ब्लैक इंक या किसी भी डाई का या किसी भी कस्टर्ड पाउडर का या किसी भी चीज का आपने उस पे जो स्पॉट लगाया है, जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं सब्सटेंस को, उसको आपने डिप करना है सॉल्वेंट में. और सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपका जो स्पॉट है वो सॉल्युबल हो, ठीक है ना? इसकी पूरी चेकिंग की जाती है कि यार ये जो सब्सटेंस है किस किस चीजों में सॉल्युबल है, उसके ऊपर पूरी चेकिंग की जाती है, एनालाइजिंग की जाती है. उसके बाद हम जो है सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं. बट राइट नाउ यू आर जस्ट इन ऑर्डिनरी लेवल, सो हम इस लेवल पे जो है आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कौन कौन से सॉल्वेंट हमें लेने चाहिए, कौन सा ले सकते हैं, वो आपको गिवन कर देंगे. आपको बता देंगे दिस सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन इथेनॉल, दिस सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर, या दिस सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन इथेनोइक एसिड, तो आपको सॉल्वेंट बता देंगे, ठीक है ना? बट आपको ये चीज याद रखनी है खाली कि आपके पास जो स्पॉट होना ना, वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है ना? सो आपने ये याद रखना है कि जो आप ये आपके पास जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है ना, ये आप सॉल्वेंट में डिप करोगे, ठीक है ना? नाउ डिप द पेपर इन द सॉल्वेंट, डिप द पेपर इन द सॉल्वेंट, ठीक है ना? और सॉल्वेंट आपने याद रखना है ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास सब्सटेंस सॉल्युबल हो, ठीक है ना? जो सब्सटेंस आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, दैट सब्सटेंस शुड बी सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट. यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है ना? सब्सटेंस should be soluble in the respective solvent. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो सॉल्युबल होना चाहिए आपके सॉल्वेंट में, अदरवाइज अगर वो सॉल्युबल ही नहीं होगा तो वो सेपरेट आउट नहीं करेगा उसके कंपोनेंट्स को, ठीक है ना? तो सॉल्युबल होना चाहिए. दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो बेस लाइन है ना, ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट सॉल्वेंट से बराबर में नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा इसमें बना हुआ डायग्राम है, ठीक है ना? ये कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली सा ऊपर होना चाहिए. यहाँ लगाना है आपने स्पॉट, ठीक है ना? ऐसे लगाना है आपने स्पॉट, थोड़ा सा सॉल्वेंट लेवल नीचे होना चाहिए बेस लाइन से, ठीक है ना? बेस लाइन से सॉल्वेंट लेवल थोड़ा सा नीचे होना चाहिए. स्पॉट सॉल्वेंट से टच ना हो, बेस लाइन सॉल्वेंट से टच ना हो, ठीक है ना? फिल्टर पेपर डिप हो जाए सॉल्यूशन में, ठीक है? सॉल्वेंट में आपके पास फिल्टर पेपर है या आपके पास क्रोमेटोग्राफी पेपर है, आप उसको डिप कर रहे हो सॉल्वेंट में, बट इतना डिप करना है कि आपके पास जो बेस लाइन हो वो थोड़ी सी ऊपर रहे, थोड़ी सी ऊपर रहे. अब देखें सॉल्वेंट जो आपने सेलेक्ट किया बच्चों, दैट इज एक्चुअली यू नो दैट कि आपके पास जो स्पॉट है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, ठीक है ना? तो आपने सॉल्वेंट ऐसा सेलेक्ट किया है कि जिसके अंदर स्पॉट सॉल्युबल है. अगर आप बेस लाइन तक सॉल्वेंट को ले आओगे तो जो स्पॉट है वो तो सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा वहीं सॉल्वेंट में और नीचे ही रह जाएगा, तो सेपरेट ही नहीं होगा, ठीक है ना? हमने क्या करना है, उसको पेपर को डिप करना है खाली, ताकि वो जो सॉल्वेंट है वो पेपर पे राइज करे. जब वो पेपर पे राइज करेगा
तो वो स्पॉट तक पहुंचेगा। जब वो स्पॉट तक पहुंचेगा फिर वो अपने अंदर उसको डिसॉल्व करेगा और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को पेपर पे जो है ना सेपरेट करेगा। अगर आपने उस स्पॉट को ही सॉल्वेंट के अंदर तक डिप कर दिया तो फिर वो वहीं डिसॉल्व होकर नीचे ही रह जाएगा सॉल्वेंट के अंदर ही, फिर वो पेपर पे राइज नहीं करेगा। ठीक है ना। इफ यू वांट कि आप सेपरेशन पेपर पे हो तो आपने क्या करना है, बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे रखना है सॉल्वेंट लेवल को। ठीक है ना। तो दिस इज एक्चुअली सॉल्वेंट लेवल। आप देखें ये जो है आपके पास ये वाली जो लाइन है ना, जहां तक आपने सॉल्वेंट फिल किया हुआ है इसके अंदर कंटेनर के अंदर, तो ये कहलाती है सॉल्वेंट लेवल। क्या कहलाता है बच्चों, ये सॉल्वेंट लेवल। और सॉल्वेंट लेवल थोड़ा सा नीचे होना चाहिए बेस लाइन से, ये आपने याद रखना है। बेस लाइन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए सॉल्वेंट लेवल से। ठीक है बच्चों। पेपर में आपसे पूछेगा ड्रॉ द सॉल्वेंट लेवल, बेस लाइन उसने बनाई हुई होगी तो आप उसके नीचे एक थोड़ा सा नीचे करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। यस सर। और इसकी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। इफ यू आर गोइंग टू dip the spot in the solvent, so definitely it is soluble in that solvent, so it dissolves completely in the solvent and it is not going to rise up on the paper। ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि सेपरेशन जो है पेपर पे हो। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आप देखें, जब आपने इसको डिप किया तो यहाँ पर राइज होना शुरू होगा, सॉल्वेंट राइज होना शुरू होगा। जब सॉल्वेंट राइज होना शुरू होगा, कोई सा भी पेपर, किसी भी तरह का पेपर अगर आप पानी में हैंग करेंगे या किसी भी लिक्विड में हैंग करेंगे तो जो पेपर है वो पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू होगा और पानी उस पेपर पर राइज होना शुरू होगा। ठीक है ना। अब जैसे ही ये राइज होना शुरू होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट आया अब पेपर के ऊपर, तो उसने फील किया कि यार यहाँ पर कोई चीज ऐसी है जिसको मैं अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता हूँ, तो फिर वो सेपरेट करना शुरू हो जाएगा। वो अलग अलग कंपोनेंट में इसको सेपरेट करेगा। ये जब तक सेपरेट करता रहेगा जब तक ये सॉल्वेंट इसके ऊपर राइज करता रहेगा। ठीक है। ये राइज करेगा इस तरह, और जितना जितना ये राइज करेगा इसके ऊपर, ये उतने उतने स्पॉट्स को सेपरेट करता चला जाएगा। ठीक है ना। Is that clear or not? Yes, sir. Any problem to any one of you? पेपर पे आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट राइज करेगा, और जब वो राइज करेगा तो क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर स्पॉट सॉल्युबल है तो उसको अपने अंदर सॉल्युबल करेगा और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स में उसको तोड़कर हमें पेपर पे डायग्राम दे देगा। इफ यू फोकस ऑन द डायग्राम तो देखें इसमें 3 डिफरेंट स्पॉट्स के कलर्स आ रहे हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली वो जो सॉल्वेंट जब राइज किया होगा इसके ऊपर तो उसने इसको तोड़ दिया 2 अलग अलग कलर्स में। ठीक है बच्चों। यस सर। Now the things to remember, you need to remember the things। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है बच्चों। आपको चीजें याद रखनी है कि आपके पास जो आप सॉल्वेंट सेलेक्ट कर रहे हो उस सॉल्वेंट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों। व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। Substance should be soluble in solvent. Substance, the substance which you are going to identify should be soluble in the respective solvent। बेहतरीन, जबरदस्त। Why we are drawing बच्चों, why we are drawing bottom line या base line with pencil? कौन जवाब देगा मुझे इस बात का? Why we are doing this? सर मैं बताऊं? जी बताइए। सर वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सर पेंसिल इज ओनली मेड अप ऑफ graphite, whereas if we use a pen it is made up of different dyes, and so it will itself create some spots. Yes, अगर आप if you are going to use, if you are going to use any pen or any ink, so ink itself dye, so its components are going to be separated on the chromatography paper, which ruins our result, which is going to disturb our conclusions, right? Very good. Yes bacho, is that compulsory for us to close the container or not? Yes sir. Yes, sir. Yes, we need to close the container because many of the solvents like ethanol, they are volatile, they can evaporate and they can be finished. You can say that they cannot create an atmosphere inside the container if they are going to evaporate or they are going to escape from the container. So that is why it is important for us to close the container, right? That is why it is important for us to close the container. Yes bacho, what happened if the baseline and the solvent level both are at the same point? What happened? Yes Parva, can you answer me? Yes Parva, can you answer me? If the bottom line and the solvent level both are on the same line, on the same level, so what is the problem that is going to be happen?
Yes, how are you there? Okay, so I think Pava is not here. So Samin, can you answer, bete? Yes, Samin, can you answer? बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ऐसे ना करें यार. Yes, Maha, can you answer? Because it is impure. No, 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 no. We are not going to talk about pure and impure right now. I am asking if the solvent level and the baseline both are at the same level. So what is the problem? Why we are Sir, we are the we are substance gets dissolved in the solvent पहले से ही. Yes, that's very good. We know that the spot and the substance which we are going to identify is soluble in the respective solvent. If the solvent level and the bottom line and the spot are on the same row or at the same line, so definitely the spot and the substance is going to dissolve in the solvent and it will remain in the solvent. It will not going to, you can say that, align with the paper, or it is not going to arise on the paper. So that is why it's very important to keep the solvent level below the baseline, right, bacho? Yes, Yes, sir. teacher. Is that clear to all of you or not? Yes, sir. Now अब देखें, Yes. हो गया. अब फॉर एग्जांपल जो हम कर रहे थे वो प्रोसेस हो गया, हमने वर्किंग की बात कर ली, हमने अपैरेटस की बात कर ली, हमने सब स्टार्ट कर लिया. उसके बाद हमारे पास आ गए इस तरह के कुछ रिजल्ट्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आ गए. नाउ what are the conclusions these papers showing us, right? So just look at over there. These are known as क्रोमैटोग्राम्स. ये कहलाएंगे बच्चों क्रोमैटोग्राम. जब आपके पास क्रोमैटोग्राफी हो गई, उसके बाद जो रिजल्ट वाला क्रोमैटोग्राफी पेपर होगा उसको आप बोलते हो क्रोमैटोग्राम, राइट? सो द पेपर which give you the result after the chromatography is termed as chromatogram. क्या कहलाएगा बच्चों ये? Chromatogram. Is that right? Now let's check what are the conclusions, what are the results these chromatogram telling us, right? This is, for example, chromatogram number 1, this is chromatogram number 2, and this is chromatogram number 3, right? To the first one, first chromatogram telling us that whatever the substance is this, कोई सा भी substance हो ये. For example, this is the substance 1, right? This is the substance 1. So what is the answer of this? अब देखें, आपने याद रखना है जो आपके पास substance 1 है वो chromatography के बाद बच्चों they are just giving us a single spot, right? So if you see such results in the chromatogram, remember this, only pure substance can give you a single spot after chromatography, right? So you need to remember this. The conclusion number 1 is pure substance. The substance 1 is pure. Substance 1 is pure because ये chromatography के बाद सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉट दे रहा है. कितना स्पॉट दे रहा है बच्चों? एक स्पॉट दे रहा है. एक स्पॉट वाला सब्सटेंस हमेशा प्योर होता है. इज दैट राइट और नॉट? Yes, so you need to keep remember it's pure because only one spot. You need to remember the reason as well because they can ask that reasons as well. Then secondly, if you talk about the second chromatogram बच्चों, तो second chromatogram में आपके पास क्या नजर आ रहा है आपको? Second chromatogram में आपको नजर आ रहा है कि this is split into two different spots, right? It is split into two different spots. So you can say that substance 2. If you talk about substance 2 बच्चों, you can say that substance 2 is the mixture of two components. Is the mixture of two components, right? So if any substance is going to show you two spots, that means कि यार उस substance के अंदर दो अलग अलग components मौजूद हैं. Is that right बच्चों or not?
Yes, sir. Okay, then if you talk about the third one, for suppose I am giving you कि यार ये जो है आपके पास ये है मिक्सचर, क्या है बच्चों, ये जो मैंने लगाया ना स्पॉट, ये स्पॉट लगाया मैंने मिक्सचर का, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने एक जो है बच्चों के लिए एक टॉफी बनाई है, ठीक है ना। ये टॉफी बना रहा हूँ मैं इन 3 डाइस से मिलाकर, सॉरी मैं ये जो टॉफी बना रहा हूँ ये मैं टॉफी बना रहा हूँ इन डाइस से मिलाकर, ये 4 डाइस है मेरे पास, इन 4 डाइस से मिलाकर मैं ये टॉफी बना रहा हूँ। या फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ सोच रहा हूँ शायद शायद कि मेरे पास इस टॉफी के अंदर ये 4 डाइस हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, डाई ए को यहाँ स्पॉट किया, डाई बी को यहाँ स्पॉट किया, डाई सी को यहाँ स्पॉट किया, डाई डी को यहाँ स्पॉट किया, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास मेरा जो टॉफी है, मेरे पास जो मेरी जो स्वीट है, मेरे पास जो मेरा मिक्सचर है, उसके अंदर कौन कौन सी डाइज मौजूद हैं या कौन कौन से फ्लेवर्स मौजूद हैं। मैंने क्रोमेटोग्राफी की, ये सारे स्पॉट सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब जब रिजल्ट आया तो आप देखें, one more conclusion that you need to remember is whenever the spots have same height, जब spots की height same होती है तो they are the same substances, right? same height वाले same substances होते हैं, same height same component या same substance, right? या same component लिखते हैं, it will be good. same height वाले होते हैं आपके पास same components, right? So just look at over here, if you talk about the green one, so they are on the same height, so you can say that कि I have die C in my mixture, right? And I also have die B in my mixture. So conclusion over here, you can write about substance या mixture tree. So you can say that in a mixture, या आप कह सकते हैं this is the mixture, this is the mixture of die B and C, because the spots that you find in the mixtures are having the same heights as die B and C, C having the spots, right? और अगर आप die A को देखो, so it is completely separate, ये बिल्कुल अलग है die, और उसके अलावा आप देखें यहाँ पर तो यहाँ die D भी बिल्कुल separate है। But one more problem over here is this point, ये point यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो अगर आप यहाँ एक कंक्लूजन लिखते हैं तो ये कंक्लूजन यहाँ बन सकता है दैट ये कंक्लूजन आप कह सकते हैं दैट मिक्सचर डज नॉट हैव डाई ए एंड डी, ये तो कंफर्म है कि डाई ए और डाई डी नहीं है मिक्सचर में। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि बी का क्या करना है, बी के अंदर 2 स्पॉट्स हैं और उन 2 स्पॉट्स में से एक स्पॉट मिक्सचर में मौजूद है और दूसरा स्पॉट मिक्सचर में मौजूद नहीं है। So you can say that die B is a mixture of 2 components, right? सर Die B तीसरा itself वाला a mixture of 2 components and सर ये जो तीसरा थर्ड पॉइंट है इसमें सम के बाद आपने क्या लिखा है थर्ड पॉइंट same height same components, यानी कि अगर हाइट सेम हो कंपोनेंट्स की तो कंपोनेंट सेम होते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन सी दिस, उसी की बेसिस के ऊपर हम सारे कंक्लूजन्स रेडी कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास मिक्सचर के अंदर ये 3 स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। इस एक ये ए या एक स्पॉट जो है बी के एक स्पॉट से मैच कर रहा है और जबकि बाकी जो 2 स्पॉट्स हैं वो सी के 2 स्पॉट से मैच कर रहे हैं। तो इट इज कंफर्म कि आपके पास मिक्सचर में सी तो है ही है, ठीक है ना। और ये भी कंफर्म है कि उसमें ए नहीं है और डी भी नहीं है, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि बी तो है उसमें लेकिन बी का एक स्पॉट है दूसरा स्पॉट नहीं है। तो हम वो लिख रहे हैं कि डाई बी is a mixture, right, of 2 components, right, and one of them is in the mixture, ये वो मिक्सचर है जो कि हम आइडेंटिफाई करें दिस मिक्सचर, राइट। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ई सपोज कर लेते हैं, मिक्सचर ई, राइट। इज दैट राइट बच्चों? Or one more conclusion you can write over here that die A and die D are pure dyes, right? Die A and D are pure because they are composed
on a single spot, right or not? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. These are very much important, right? So remember these points, these conclusions are very important, right? And for example, right now in the chromatogram, you saw this, that we have a colorful spots over there, so it's very easy to identify the heights and the other things over here. ये component है या दो component है, it's very easy to find out the conclusion. For suppose if a mixture is going to be separated on the chromatography paper and the spots are not colored, वो colorless हैं, so how can we identify? यार हम तो identify नहीं कर पाएंगे अगर colorless spots होंगे, तो it will be difficult for us to identify. जब तक कलर था तो हम उसकी हाइट भी मालूम कर रहे थे, उसको फाइंड आउट भी कर रहे थे, दैट्स ऑल फाइन. बट अब कलर ही नहीं है, कलरलेस है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब आपके पास कलरलेस स्पॉट्स होते हैं, सो यू स्प्रे अ लोकेटिंग एजेंट ओवर देम, राइट? आप लोकेटिंग एजेंट उसके ऊपर जो है स्प्रे करते हैं, वो लोकेटिंग एजेंट क्या करता है? रिएक्शन करता है. वो रिएक्शन करने के बाद आपके जो स्पॉट्स के जो सेपरेशन हुई भी होती है उनको विजिबल कर देता है, राइट? So if you want to visualize your colorless spots, you can use locating agent, right? You need to remember this one as well. Locating agent is something which is used to visualize colorless spots, right? Locating agent used to visualize colorless spots, yeah, colorless spots on chromatogram, right बच्चों? Is that clear or not? Sir, second last statement नहीं समझ आई. One of them is in the mixture E. सेकंड लास्ट नहीं समझ में आई. देखिए ना, अगर आप डाई बी को देखते हो, इफ यू फोकस ऑन डाई बी, तो डाई बी बनी हुई है इट्स सेल्फ दो स्पॉट से, एक ये वाला है, एक ये वाला है, राइट? ऐसी है. Yes sir. और इन दो स्पॉट्स में से एक स्पॉट की हाइट मैच कर रही है खाली मिक्सचर से, दूसरा स्पॉट तो है ही नहीं मिक्सचर में, है ना? Yes sir. तो हमने ये लिखा है कि डाई बी itself a mixture of two components and one of them out of these two components, one of them is a part of mixture E and the second one is not over there, right? Yes sir. ठीक है बच्चों, is that clear for all of you? Yes, sir. Now you can see this कि आपके पास क्रोमेटोग्राफी यूज होती है बच्चों separating components in a sample. आप उसको यूज कर सकते हो for the number of components as well. You can even identify the component as well, or you can even identify the purity of the sample. We have 4 to 5 different reasons to use chromatography, and all these are over here as a use. But the very important thing to identify the component. If you want to identify the component, for example, आपने देख लिया कि आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं या 4 कंपोनेंट्स हैं, बट आपको उसको आइडेंटिफाई करना है. तो अगर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं आरएफ वैल्यू. इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर. रिटार्डेशन फैक्टर आप यूज करते हैं. ये फैक्टर क्या चीज है आपके पास? यहाँ पर आपको लेंथ जो है कैलकुलेट करनी होती है. आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? आरएफ वैल्यू कैलकुलेट होती है बच्चों डिस्टेंस covered by spot over distance covered by solvent, right? ये RF वैल्यू इस तरह आपके पास कैलकुलेट होती है. आपके पास distance covered by spot and the distance covered by solvent, इस तरह आप RF वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ स्पॉट लगाया था, ठीक है ना? जब आपने सॉल्वेंट यहाँ रखा, तो उसके बाद ये स्पॉट यहाँ जाके सेपरेट हुआ. तो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस, और यू कैन से दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्पॉट. नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि सर हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे बच्चों? तो आपने याद रखना है, स्पॉट एक काफी बड़ा भी आ सकता है, तो आपने हमेशा स्पॉट के सेंटर से डिस्टेंस स्टार्ट करना है, मेजर करना. और बेस लाइन भी हम सिर्फ इसी वजह से लगाते हैं ताकि हम ये मेजर कर सकें डिस्टेंस, ठीक है ना? इजीली और अच्छे से मेजर कर सकें. तो आप स्केल से इन सेंटीमीटर आप कर सकते हो कैलकुलेट ये डिस्टेंस. और फॉर सपोज ये जो है लिक्विड बढ़ता 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 बढ़ता, ये जो आपका जो सॉल्वेंट था वो यहाँ तक रीच कर गया था पेपर पे,
ठीक है ना। तो जितना ये सॉल्वेंट आपके पास रीच किया था उस सॉल्वेंट का भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो इन सेंटीमीटर, उन दोनों को डिवाइड कराते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 3 आ रहा है और ये आपके पास 5 आ रहा है, तो आप 3/5 कराओगे, आपको पर मिल जाएगी RF वैल्यू विच इज 0.6 राइट नाउ। इस वक्त फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0.6 आ रही है RF वैल्यू। रिमेंबर दिस कि आपके पास सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा हमेशा ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। जब उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका आंसर हमेशा अंडर 1 आएगा, 1 से नीचे आएगा आपका आंसर हमेशा। ये आपने याद रखना है। The answer of the RF value is always less than 1. आप उल्टा रखेंगे अगर वैल्यूज को तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। Remember this that the RF value is always under 1. इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। 0.4, 0.5, 0.6, 0.9 भी आ सकता है बट छोटा ही आएगा, ठीक है ना। 1 से ऊपर आंसर नहीं आ सकता। देन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर ज्यादा देर लगा दी, लॉन्ग टाइम के लिए आपने इसको छोड़ दिया प्रोसेस को, और यहाँ पर आपने शॉर्ट टाइम के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक स्पॉट को ज्यादा देर तक सेपरेट करते हैं और किसी एक स्पॉट को आप जो है थोड़ी देर के लिए सेपरेट करते हैं, तो आपने याद रखना है RF वैल्यू चेंज नहीं होती। RF वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि अगर आप ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो सॉल्वेंट भी फिर ज्यादा राइज अप करेगा और स्पॉट भी आपके पास ज्यादा राइज करेगा। अगर आप कम देर के लिए रखेंगे तो आपके पास सॉल्वेंट भी कम राइज करेगा और स्पॉट भी। बेटे आपका माइक किसी का खुला हुआ है तो वो आप म्यूट रखो। इसका आयान बेटे माइक म्यूट कर लो, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा देर तक क्रोमेटोग्राफी करते हो बच्चों तो ज्यादा देर तक सेपरेशन होगी, और अगर आप कम देर तक करते हो तो कम सेपरेशन होगी, बट RF वैल्यू विल रिमेन सेम। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द RF वैल्यू, राइट? नो इफेक्ट ऑन RF वैल्यू if the chromatography take longer time. Right बच्चों, is that clear or not? सर एक क्वेश्चन था जी पूछें। सर। जब आप वर्किंग वाला हमें स्टेप करा रहे थे सर, उसमें आपने बताया था कि सर जब क्रोमेटोग्राफी पेपर के क्रोमेटोग्राफी पेपर जब सॉल्वेंट के डिप होगा, सो सर वो सॉल्वेंट इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता राइज करेगा, सो सर वो स्टेप हम लोग लिखेंगे नहीं? वर्किंग वाला स्टेप लिखना नहीं है आपने। पेपर में सवाल जो आते हैं आपके पास RF वैल्यू निकालने के लिए आ जाते हैं, बॉटम लाइन बनाने के लिए आ जाते हैं, सॉल्वेंट लेवल बनाने के लिए आ जाते हैं, आपके पास जो है कंक्लूजन्स लिखने के लिए आ जाते हैं, आपके पास एरर एंड प्रॉब्लम्स लिखने में आ जाते हैं। बट वर्किंग वाला जो आपके पास पार्ट आता है वो आपके पास आता है तब जब आप जो है फॉर एग्जाम्पल कोई एक इन्वेस्टिगेशन प्लान कर रहे होते हैं। जैसे वो आपसे बोले कि यू हैव अ पिगमेंट, या फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ डाई टू बी सेपरेटेड, तो उसके लिए आप एक पूरा पूरा लैब अपैरेटस और एक पूरी लैब का प्रैक्टिकल आप जो है शेड्यूल करें, एक प्लान करें, आप बताएं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए आपको ये पूरा करना होगा। तो बजाय इसके कि मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बजाय इसके कि आप बहुत सारा लिखें, आप एक अच्छी सी डायग्राम बना दें, उसकी डायग्राम के अंदर आप सारी चीजों को डिफाइन कर दें, तो इट विल गिव यू मोर मार्क्स। रिटर्न में आप गलती कर सकते हैं, डायग्राम बनाते वक्त आप काफी बेहतर डायग्राम बना सकते हैं। सो इफ यू सी द वर्किंग, सो यू कैन इवन डू वर्किंग, और इफ यू ड्रॉ द डायग्राम सो इट विल बी मोर गुड। आपने डायग्राम बनाई, पेपर बनाया, पेपर पे स्पॉट लगाया, स्पॉट पे बेसलाइन बनाई, बेसलाइन के नीचे आपने सॉल्वेंट लेवल बनाया, आपने क्लोज कंटेनर बनाया। जब आप ये सारी चीजें बना लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके सर। अगर आपने लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन ये आता है पेपर प्लानिंग के क्वेश्चन में, और प्लानिंग का क्वेश्चन आता है पेपर 4 में या पेपर 6 में, और ये लास्ट क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का जो कि प्लानिंग क्वेश्चन होता है। अब जरूरी नहीं है उसके अंदर आपके पास क्रोमेटोग्राफी आए, उसके अंदर आपके पास सॉल्ट फॉर्मेशन भी आ सकता है, उसके अंदर आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी रेट भी आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी कलर और या सॉल्ट भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं उसके अंदर। आपके पास टाइट्रेशन का मेथड भी आ सकता है, उसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो उनमें से हो सकता है कि एक ये भी आ जाए, ठीक है। ओके सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये RF वैल्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा आपने ये बात याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको तंग करता है पेपर के अंदर
उसने क्रोमेटोग्राफी का पेपर बना के दिया आपको, ठीक है ना, और आप देखें कि उसने बेस लाइन से ऊपर स्पॉट बना दिया, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है कि आपने यहाँ तक स्पॉट गया तो आप स्पॉट का डिस्टेंस तो यही लोगे, मुझे पता है स्पॉट का डिस्टेंस आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, दिस इज x, बट आपने याद रखना है कि अगर सॉल्वेंट यहाँ तक ट्रेवल किया है और ये वाला हिस्सा y है और ये वाला हिस्सा z है, तो आपने याद रखना है कि आप जहां से स्पॉट को ले रहे हो वहीं से आप सॉल्वेंट को भी लोगे, ठीक है ना। बेसलाइन हम क्यों बनाते हैं, बेसलाइन हम इसलिए बनाते हैं ताकि जहां से हम स्पॉट का डिस्टेंस ले रहे हैं वहीं से हम सॉल्वेंट का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो अगर अगर आपका जो एग्जामिनर है उसने स्पॉट को जो है बेसलाइन से ऊपर बना दिया है, तो जब आप आरएफ वैल्यू ले रहे होगे तो यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट एंड सॉल्वेंट। आपने स्टार्ट ही वहां से करना है जहां से आप स्पॉट का कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिमेंबर ऑलवेज टेक द start reading for spot and solvent from the same point, ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है, राइट बच्चों और नॉट। यस सर। Now this is a very important and very you can say that a very huge topic in past papers. Many of the time you will see questions regarding this topic. बहुत आते हैं, तो इंशाल्लाह कल की क्लास जो हमारी होगी वो कल की क्लास के अंदर हम इसके पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस करेंगे। यू विल सी दैट पास्ट पेपर क्वेश्चंस किस तरह आते हैं एग्जाम में। और उससे पहले आई जस्ट आस्क यू गाइस टू सॉल्व और टू लर्न these things, these basic information, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। these are very important, आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए आपको, ये बातें पता होनी चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी प्योरिटी के लिए चेक होती है, प्योरिटी चेक करने के लिए यूज होती है। आपको पता होना चाहिए apparatus कैसे सेट करना है, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, सॉल्वेंट लेवल डाउन होना चाहिए, बेस लाइन ऊपर होनी चाहिए, उस पर स्पॉट लगना चाहिए, उस स्पॉट को जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, डिप नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं उसको जब तक क्रोमेटोग्राफी नहीं हुई होती, जब क्रोमेटोग्राफी हो जाती है तो उसको आप क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। और उसके बाद आपको याद रखना है कि इफ ओनली वन स्पॉट इज गोइंग टू बी सेपरेटेड ऑन द क्रोमेटोग्राफी पेपर देन इट इज अ प्योर सब्सटेंस। और अगर दो स्पॉट हैं तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू स्पॉट्स या टू कंपोनेंट्स, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स अगर तीन स्पॉट्स हैं। और अगर सेम हाइट है तो इसका मतलब द सब्सटेंस इज सेम बिकॉज उसकी आरएफ वैल्यू सेम होगी, आरएफ वैल्यू कांस्टेंट होती है। आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएफ वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्पॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि जहां से आप स्पॉट का डिस्टेंस लेना कैलकुलेट करेंगे वहीं से आप सॉल्वेंट का भी लेना शुरू करेंगे। दूसरा ये कि अगर स्पॉट का साइज बड़ा है आपने डिस्टेंस लेना है सेंटर से, स्पॉट के सेंटर से लेना है, स्पॉट के दूसरे सेंटर तक आपने करना है ये। दूसरा ये कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, अगर आप ज्यादा देर तक लगाएंगे तो ज्यादा देर तक करेंगे तो ज्यादा आरएफ वैल्यू नहीं आएगी। आरएफ वैल्यू इज एक्चुअली द इट इज एक्चुअली द फ्रैक्शन ना, और फ्रैक्शन में वाटर और डाई दोनों का तक लगाएंगे तक सेपरेट होगा, जल्दी से छोटा सा होगा सेपरेशन, जितना भी होगा फैक्टर विल रिमेन सेम, द डिस्टेंस द रेशियो बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द स्पॉट विल रिमेन सेम, तो आरएफ वैल्यू विल नॉट गोइंग टू बी चेंज। राइट बच्चों, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Yes, sir. You need to keep remember that we need to draw the baseline with a pencil as well, क्योंकि पेन से यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, वहां डाई सेपरेशन हो सकती है, वो सारी चीजें आपने कल से पहले तक रिवाइज करनी है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पास्ट पेपर्स करेंगे जिसके आंसर आप लोग खुद देंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द सब्सटेंस नेम जो कि कलरलेस स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने में काम आता है, इट इज अ लोकेटिंग एजेंट, ये भी आपको याद रखना होगा। ऑल क्लियर बच्चों? यस सर। सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कर सकते हैं आप? ये लीजिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है यू कैन आस्क, अदरवाइज इफ यू वांट टू लीव सो यू कैन। ओके सर।